So, old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some monkeys, E-I-E-I-O. So my dear guys, I welcome you all to the Bipin Study Circle. It is the language classes and the literature classes hereby. So my dear guys, once again welcome back to the Bipin Study Circle. First of all, you would be thinking that why sir was singing such a nursery rhymes in TGT or PGT classes. So my dear guys, my focus was only to clear you the concept of today's figure of speech. So today once again, in this figure of speech, I have brought a new topic, onomatopoeia. Onomatopoeia. This is a figure of speech. So my dear guys, I started with this poem, Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. The basic reason starting this lecture with this nursery rhymes was to clear you the sense of the figure of speech which I am going to teach you all today. In today's figure of speech, I will teach you the topic onomatopoeia. Onomatopoeia in Hindi, it is known as a dhvani karan, alankar. So today I will tell you how in this rhyme onomatopoeia is being used. When you used to say Old MacDonald's had a farm, sing with me. Old MacDonald's had a farm, E-I-E-I-O. So this E-I-E-I-O, E-I-E-I-O, this E-I-E-I-O is onomatopoeia. This E-I-E-I-O is onomatopoeia. That was the basic reason which I want to explain you today in this figure of speech, onomatopoeia. So onomatopoeia is a kind of a figure of speech. It had been clear to you that in which some sound words come. Which kind of sound words come? So let us start with the basic of the onomatopoeia. ओनोमाटोपिया का आज जो फिगर ऑफ स्पीच में बताने वाला हूं, यानी कि इसमें जब किसी लाइन में साउंड ऐड किया जाता है, तो जब साउंड ऐड किया जाए तो उस फिगर ऑफ स्पीच को ओनोमाटोपिया कहते हैं। लेकिन ओनोमाटोपिया कैसे होता है ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओनोमाटोपिया का मतलब जान लीजिए। ओनोमाटोपिया तो सबसे पहले इट इज अ ग्रीक वर्ड, इट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है sound describing something. Whenever sound describes something, that thing is known as a onomatopoeia. यह onomatopoeia कोई इंग्लिश वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड बिल्कुल नहीं है, ये एक ग्रीक वर्ड है। So ये ग्रीक वर्ड होने के साथ साथ इट इज अ लिटरेरी डिवाइस ऑल्सो। लिटरेरी डिवाइस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि लिटरेरी डिवाइस इज अ काइंड ऑफ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड इन द लिटरेचर as a license. As a license, it is also known as a poetic license. So onomatopoeia के बारे में जान लेते हैं, उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि onomatopoeia कैसे यूज होता है और कहाँ हम ये पहचान सकते हैं कि onomatopoeia है। Onomatopoeia is a literary device in which sound suggests its meaning. This question was asked in TGT 2009 and how the question was asked I will explain you later. लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं इसका डेफिनेशन कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर साउंड यानी कि ध्वनि यानी कि आवाज उसके मीनिंग को सजेस्ट करती है, हमको सजेस्ट करती है। तो 2009 में TGT के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था which literary device is used to suggest the sound its meaning. Which literary device suggests its meaning by sound? This question was asked in TGT 2009. ठीक है, TGT 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था onomatopoeia। अब डेफिनेशन और आगे बढ़ते हैं। The meaning of some words are conveyed by its sound, यानी कि कुछ शब्दों के
कुछ शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो उसके ध्वनि से बताए जाते हैं, यानी उसकी आवाज से बताए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सच वर्ड्स आर कॉल्ड ऑनोमाटोपिया। नोट्स भी बनाते रहिए। ऐसे ही वर्ड्स को हम लोग कहते हैं ऑनोमाटोपिया। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ध्वनि जो होती है, जो आवाज होती है, वो एक किरदार निभाती है और एक मुख्य किरदार निभाती है उसके मतलब को बताने के लिए। अगर उसमें ध्वनि ना हो तो उसका मतलब निरर्थक होगा, यानी इट विल बी मीनिंगलेस। So that is why sound is necessary to add the meaning of that particular word. So that is why here in this figure of speech, the meaning of some words are being conveyed by the sound, which is known as an onomatopoeia. Second, मैंने एक और डेफिनेशन लाया है। इस क्या करता है, ये काम क्या करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। It creates, यानी ये बनाता है, it is making, it creates a sound effect, एक साउंड का इफेक्ट डालता है, एक साउंड का इफेक्ट बनाता है। That mimics, जो कि कॉपी करता है। क्या करता है? मिमिक्स का मतलब टू कॉपी, जो कि कॉपी करता है। The thing described making the description more expressive and more interesting। ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी चीज जिसको डिस्क्राइब किया गया है, जिसके बारे में बताया गया है, उसके डिस्क्रिप्शन को और ज्यादा एक्सप्रेसिव, और ज्यादा एक्सप्रेशंस के साथ, और ज्यादा इंटरेस्टिंग, लोग उस पर इंटरेस्ट ले, इसके साथ वो फिगर ऑफ स्पीच काम करता है। यानी उसमें साउंड की मीनिंग को लेके तो आता है, लेकिन और ज्यादा एक्सप्रेसिव, और ज्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे कि अभी मैंने पोएम गाया, ओल्ड मैकडॉनल्ड्स हैड अ फार्म, इया इया ओ, ठीक है ना? ठीक उसी तरीके से। अब थर्ड कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर कि एग्जांपल्स होता क्या है ऑनोमाटोपिया का। ड्रोन्ड बाय द टिटरिंग ऑफ क्लास टीजीटी 2005। क्वेश्चन है टीजीटी 2005 में पूछा गया था। ड्रोन्ड का मतलब तो सिंपल सा आप लोग जानते होंगे कि डूब जाना, ठीक है। टिटरिंग का मतलब कि दबे हुए हंसना, या फिर एक ऐसा हंसना जैसे कि ड्यू टू शाय। तो यानी मैं उस क्लास के हंसी के वजह से, जिस तरीके से उन्होंने शर्मिंदगी वाली हंसी मेरे सामने हंसी, उससे मैं खुद डूब गया। तो यहाँ टिटरिंग जो है, टिटरिंग इफेक्ट डाल रहा है क्लास के हंसी पर, इस वजह से ये ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहा है और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। तो ये जो टिटरिंग वर्ड है, ये ऑनोमाटोपिया का काम कर रहा है। दैट इज व्हाई इन दिस लाइन ऑनोमाटोपिया यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में लेकर के आया हूं, द मर्मरस हॉट ऑफ फ्लाइज ऑन समर व्यूज ईव्स, टीजीटी 2010। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है ये, मुझे जब याद आ रहा है, ये लाइन जो है द ओड ऑफ अ नाइटिंगेल से लिया गया है इस लाइन को, और ये शायद लास्ट लाइन है, लास्ट सेकंड लाइन है द नाइटिंगेल ऑफ द ओड में। यहाँ पे क्या होता है, जब मैं थोड़ा सा पोएम के बैकग्राउंड में भी जाऊंगा, जब पोएट एकदम से अकेला हो जाता है और पोएट बैठा होता है, तो बैठे हुए अकेलापन में वो कहता है द मर्मरस हॉट ऑफ फ्लाइज ऑफ द समर व्यूज, यानी कि वो यहाँ पर बैठा रहता है तो डिस्क्राइब करता है कि मुझे वहां पर क्या सुनाई दे रहे थे, जो मक्खियां थी उनके भनभनाहट की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसका मतलब ये कि इतना ज्यादा एकांत, इतना ज्यादा शांतपना था वहां पर कि मक्खियों की आवाज भी उसको सुनाई दे रही थी। तो सीधा से इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो दोपहर की शाम के पहले, गर्मियों की शाम के पहले मैंने मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज भी सुनी, ठीक है। तो ये जो हॉन्ट वर्ड यूज हुआ है ना, ये हॉन्ट जो है फ्लाइज के भिनभिनाने को और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ ऑनोमाटोपिया। अब देखो, आई कुड हियर द लीव्स रसलिंग एंड द विंड हॉलिंग, यानी विंड को हॉल करते हुए, दहाड़ते हुए, और लीव्स खट की आवाज करते हुए, यानी लीव्स के खड़खड़ाने की आवाज को और ज्यादा एक्सप्रेसिव कर रहा है और विंड के गड़गड़ाने की आवाज को भी और ज्यादा एक्सप्रेसिव कर रहा है और इंटरेस्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऑनोमाटोपिया यूज हुआ। सो इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं पर भी किसी भी लाइन में अगर ऐसे वर्ड्स यूज हो जाएं जो कि साउंड वर्ड हैं और साथ ही में वो इफेक्ट डालें और क्रिएटिव बनाएं और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाएं, तो वही वर्ड कहलाते हैं ऑनोमाटोपिया। अब कुछ नोट में लेकर के आया हूं,
इसी वजह से hence we come to know that it is the figure of speech where the word is used to describe a sound। यानी कि हमको ये समझ में आता है कि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर किसी भी शब्दों को डिस्क्राइब करने के लिए आवाज की जरूरत पड़ती है, ध्वनि की जरूरत पड़ती है। When we explain any action by putting the sound into the language, it is known as a onomatopoeia। जब भी हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं उसमें एक्शन डाल करके और एक्शन में क्या डाल करके, साउंड डाल करके लैंग्वेज के अंदर, उसी को कहते हैं ओनोमाटोपिया। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी एक्शन को, किसी भी लाइंस को जब साउंड उसमें इंसर्ट करके और साउंड को लैंग्वेज में इंसर्ट करते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में, जैसे हिंदी या इंग्लिश के फॉर्म में इंसर्ट करते हैं, उसी को ओनोमाटोपिया कहते हैं। सो माय डियर गाइस, एक बार घर पे जाइएगा, नर्सरी राइम्स आराम से पढ़िएगा। ओल्ड मैकडॉनल्ड्स हैड अ farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some monkeys, E-I-E-I-O, and a chat here and a chat there, here a chat, there a chat, everywhere a chat.